So today I am going to be talking about chakras and nadis. I'll be talking in Hindi as well as in English. So first my English version. So we have almost 114 chakras, out of which we are going to be talking about 7 chakras. And we have almost 72,000 to 350,000 nadis, out of which we'll be talking about 3 nadis. So these 3 nadis are, one is Ida, which is moon, which is consciousness, which is mind, and which is rest or relax. And we will be talking about Pingala, which is the sun, which is action and life, right? So, and the central channel is your Sushumna Nadi, which is lying in a dormant state. These 7 chakras are powered by either Ida or Pingala. So if I'm going to be talking about Ida, what are those chakras which are associated with Ida? So it is your Agnya chakra, your Anahata chakra, and your Swadhisthana chakra. And your Pingala Nadi powers 3 chakras, which is the first of all base, the Muladhara chakra, then your solar plexus or your Manipura chakra and your Vishuddhi chakra. Now, it is very important that both my Ida and Pingala first are balanced, because Ida and Pingala can also be either underactive, overactive, or balanced. In the same way, chakras can also be underactive, overactive, and balanced. So when your Ida is, just to give a simple example, so if your Ida is, say, overactive, so that person is going to be very restless, always, thoughts are running in the mind. There will be OCD issues. If your Pingala is very weak or underactive, which means your Muladhara also is going to be very weak, that person will be energyless. He will be only deep into roti, kapda, and makan issues. Right? So now, if your root, Muladhara chakra is your root chakra. If my root chakra itself is weak, so imagine a tree which, if the root is not firmly glued, right, then the whole tree is at the risk of falling down. So your root or your Muladhara chakra has to be active. The energy is drawn from there and the energy is lifted to reach till Sahasrara. So each chakra is either underactive, overactive, or balanced, likewise Ida and Pingala also. So your Ida is your moon, which we call is your left nostril, which means it is right hemisphere of the brain. Pingala is your sun, Surya, the sun, the right nostril, so which is your left hemisphere. So unless and until this right and left hemisphere are balanced, you may be having issues. Or in other way, if I say, if you want to have the maximum benefit in your physical health, in your mental health, in your spirituality, it is of utmost importance that Surya and Chandra Nadi also are, the Ida and Pingala are also balanced. So how do we, balance this Ida and Pingala? What is my personality type is decided by whether I'm an Ida person or a Pingala person. So as we do this chakra meditation and learn about Ida and Pingala, you yourself will be able to know what is more active for you and how do you neutralize that? How do you finally bring it to balance? How do you neutralize your Ida if it is overactive? How do you neutralize your Pingala if it is overactive? So we bring in the element of Ashtanga Yoga also here for Ida and Pingala when it has to be balanced. How do we make it as balanced? And
Also the 5 elements, of earth, which is your earth itself. Sorry, 5 elements. The one is the earth, the base is earth, then is your water, then fire, then air, and then space. So these are the 5 elements which are also associated with your chakras. So how do you take the maximum advantage? How do you integrate all these things in your chakra meditation? The Bij mantra, the mudras. How do we all slowly integrate, and how do we maximum take benefit of this chakra meditation? And when it practiced, how it entirely takes you to a different level. And before you start a meditation, there are some technical things that you'll have to take care. You cannot just, a lot of people just get into meditation, sit, but the benefit of meditation will come when certain technical things are taken care. That's wherein your Chandra Bedi or Surya Bedi or your Anulom Vilom comes into play. So friends, if you want to take benefit of this chakra meditation, I'm holding a session on 14th and 15th. You can get in touch with me on 9940016374 to know more about how these chakras and Ida and Pingala can either bring you prosperity, success or failure, good health, restoring peace and tranquility, taking you towards the journey of spirituality. So it's a holistic growth what we are talking about here. So do get in touch with me at this particular number. Now I would like to say it in Hindi. तो जैसे ये जो चक्रास जो हैं, ये 7 चक्र होते हैं. अगर आप देखा जाए तो 114 चक्र है, पर हम जो है 7 चक्रों की ही बात करते हैं. और जो नाड़ी जो है वो 72,000 से 3.5 लाख तक के नाड़ी हमारे अंदर है, जो पर विजिबल नहीं है. आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो भी आपको दिखने वाला नहीं है ये, है ना. तो ये जो है, पर हमारे जो नाड़ीज जो हैं, जो 3 नाड़ीज जो मेन जो मैं बोल रही हूँ वो है इडा मतलब कि चंद्र नाड़ी, पिंगाला मतलब कि सूर्य नाड़ी, और सुषुम्ना वो जो सेंट्रल चैनल है वो बीच का है. और ये जो चक्रा है, ये 7 चक्रा ये सेंट्रल चैनल में ही अलाइन हो जाते हैं, इसमें समा जाते हैं. तो जब हम इडा और पिंगाला की बात करते हैं या सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी की बात करते हैं, तो सूर्य और चंद्र नाड़ी का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि अगर जो आपका जो इडा है वो बहुत ओवर एक्टिव है, तो आप शायद एकदम रेस्टलेस होंगे, हमेशा हजारों थॉट्स, आपके जो विचारधारा है ये आपकी कंटिन्यूस कुछ ना कुछ दिमाग में आपका आता ही रहेगा, और बिल्कुल आप अशांत, आपका जो मन है अशांत रहता है. और ऐसे होता ना कि कई लोग एक ही काम को घड़ी-घड़ी दोहराते रहते हैं, जैसे कि नाखून को काटते रहना या तो साफ-सफाई करते रहना. तो ये जो इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, ये ओवर एक्टिव अगर हमारा इडा रहा तो हम ये ऐसे टाइप की हमारी पर्सनैलिटी रह सकती है. तो जो पिंगाला अगर मेरा ओवर एक्टिव रहा तो मैं क्या करूँगी? या पिंगाला जैसे मेरा वीक हुआ तो मैं क्या करूँगी? अगर मेरा पिंगाला वीक हुआ तो मेरा मूलाधारा चक्र भी वीक हो गया. क्योंकि जो मूलाधारा चक्र है वो पिंगाला से एसोसिएटेड है, उससे जुड़ा हुआ है. तो मूलाधारा चक्र आपका अगर वीक है तो मतलब कि जो जड़ है वो ही आपकी वीक है, उसमें ही आप में कोई एनर्जी नहीं है, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो कई हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग रोटी कपड़ा और मकान में ही फंसे हुए हैं. इससे ऊपर उनकी जिंदगी की सक्सेस जाती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने, अगर जब तक ये आप मूलाधारा को स्ट्रांग नहीं करोगे, क्योंकि मूलाधारा एक्चुअली अगर पॉजिटिव देखा जाए तो एनर्जी है, और अगर नेगेटिव देखा जाए तो इनर्शिया, या तो मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल जो जिसमें कोई एनर्जी ही ना हो, है ना. तो हर चक्रा का जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. हर चक्रा बैलेंस्ड होता है या ओवर एक्टिव होता है या अंडर एक्टिव होता है. तो कैसे हम इसको बैलेंस में लेके आए? कहीं कहीं क्या होता है, कईयों का सिर्फ 1 या 2 चक्रा ही इम्बैलेंस्ड होता है, पर आपको सबको साथ में लेके आना है. तो सबको साथ में लेके आने के लिए ये इडा और पिंगाला भी आप समझ जाओगे तो बहुत ही आपको जो है ये चक्रा मेडिटेशन भी आप
समझ जाओगे और समझ के करोगे, तो आप शायद इसको ज़्यादा सीरियसली लोगे और आपके लिए ये जो है फिज़िकल हेल्थ हो या आपका मेंटल हेल्थ हो या स्पिरिचुअलिटी की तरह आपको जाना है, तो ये सब में आपको हेल्प करेगा। हमारी जो सक्सेस है या फेलियर है, ये इड़ा, पिंगला, चक्रा भी हमें डिसाइड करते हैं क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को भी दर्शाते हैं। इसीलिए ये इड़ा और चक्रा पिंगला का और चक्रास का समझना बहुत ज़रूरी होता है और ये जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो इसको साथ में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और क्या होता है, इड़ा का मतलब है कि मेरा चंद्र नाड़ी, जो कि मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है और मतलब लेफ्ट साइड का है, और जो मेरा जो पिंगला है, वो मेरा राइट नॉस्ट्रिल है, जो मेरा सूर्य नाड़ी है। तो ये सूर्य और चंद्र नाड़ी और ये जो ईडा है, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, तो राइट हेमिस्फीयर हो गया। पिंगला जो राइट नॉस्ट्रिल है, तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। तो ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर का बैलेंस होना आपके लिए इतना लाभदायक होगा कि आपका सक्सेस जो है वो गारंटीड है। तो इसीलिए जब हम चक्रा की बात करते हैं, तो ये इडा पिंगला को भी समझना और कैसे इसको भी आप कैसे इसको, जैसे बहुत ओवर एक्टिव है तो कैसे हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, कैसे इसको समान में लेके आएंगे। तो उसमें हम अष्टांग योग भी इसमें बीच में लेके आते हैं। और जो हमारे 5 धातु है, जैसे कि ये भूमि हुआ, फिर पानी हुआ, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब भी हमारे चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। ग्लांस, हमारे जो ग्लांस है वो भी जुड़ा हुआ है इसमें। तो कैसे हम इसका मेडिटेशन करें? अच्छा, मेडिटेशन करने की भी कोई टेक्निकलिटीज़ होती है, जहाँ तभी जब हम मेडिटेशन करने के पहले अनुलोम-विलोम और ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण इसमें है। अगर ये आपने नहीं किया और आप मेडिटेशन में चले जाते हो, तो मेडिटेशन का कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है ज़्यादा। तो इसलिए अगर आपको टेक्निकली अच्छी तरह से सीखना है, ये सब कुछ होगा इसमें, बीज मंत्र भी होगा आपका, कैसे हम ये एलिमेंट्स को भी साथ में लेके आएँगे, धातुओं को भी साथ में लेके आएँगे, कैसे हम ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे, कैसे बीमारियों के बारे में समझेंगे, है ना? और कैसे इनको बैलेंस किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये मेरा जो वर्कशॉप मैं कर रही हूँ 14 और 15 अगस्त को, सैटरडे और संडे है। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप मुझे 9940016374 पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम है श्यामला जयराम शर्मा। मैं सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं चक्रा में भी मैंने सर्टिफिकेशन किया है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है किया है मैंने, और आई एम आल्सो एन एडवांस प्रैक्टिशनर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ओपोनोपोनो। तो चलिए जुड़ते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।